So welcome again, students. We will start from where we left in the last class. We were learning about the Beamer. Uh, Beamer is a class which is used to make some presentation in LaTeX. So we have seen how to make sections and how to make slides in a using the Beamer class, and then we have produced some text data and very different slides. Just in different slides, we have used a different thing to incorporate. Just like in the first slide, we have given the title of the presentation, name, affiliation, and then date. Of course, then there is a logo of our university. So this is what it is looking, and we didn't do any justification or justifying thing here to make the title in center and name in center and all. Everything is coming automatically just by the command we are giving to it. So this is what we have done so far. But this is looking a very simple slide, kind of slide. We don't have much here, which attract. Sometimes we like, or people like, the presentation should be very attractive and all. So today we will see how to make the presentation more attractive, more dynamic. So for that, let us start uh, what we can do. So let me revise first in a few minutes. The first line should be the Beamer class, inclusion for Beamer class, the document class Beamer, and then we used to write a title, then author, and then institute, that is affiliation, the institute with which we are affiliated, and then date. We can write any date, not today, but future date also we can write. There is absolutely no problem. And then as usual, any LaTeX document that is starts with begin document and end with end document. And then every slides in Beamer presentation will start with begin frame and end frame. So every presentation may have many frames, and that frame will give a one single slide to us. So this line, the title page will produce the information about the title, name, and affiliation and date. And of course, if we have included logo, then we want to include logo, then we can include logo here, just one of title page. So here we have incorporated the logo, or we can put our picture also. What you feel like you can put. But before doing that, we need to upload that picture here in this platform. So let us see how we can give it to a better look. A better look is needed. So for that, let us see this book, Beamer User Guide. I am referring the part 3, changing the way things look. So basically today we will be discussing on appearance only. Those themes, what kind of theme we can choose for. So we can choose a presentation theme and a color theme, and then font theme, and inner theme, and outer theme. But let us see what can we see. We can how we can incorporate these themes. One thing is the presentation themes. So presentation theme, we can use theme for presentation theme. We can use theme, and for that, here we can see the square bracket is there. So this is optional. We can write the attribute, or which theme you are using. We will be writing name list. That is the name of themes which we are going to use. And then color theme, we need to write color, and then font theme, here font, inner theme and outer theme.
So let us see how we can do. Use theme, the first one. Use theme, this one. So for the use theme, you have several options. Just we have not used so far. So if you write default, then it will appear like this. What you are seeing here in this page. So little light blue, very light blue kind of thing. And then of course the optional thing we can write with the head height and foot height. So this we will skip. Okay, so let us see what this is looking much better. So I'm just I'm copying this one and paste over there. So this can be put here. So this optional kind of thing we can remove. I don't know how many themes uh, will be compatible here, part things, but let us see if it can be, it is working here. So this is what we got. Just use a single command, and after using single command, we are getting this presentation. The theme already changed. You see this one. So earlier it was what? It was centered. This was also centered. This was also centered, and everything was centered. Of course, logo. Now everything is less justified, and here who, from, and when we can alter this one, this information. So this is the look what we are getting after using that thing. In navigation, it can work just like navigation. If you click here, facts about 12. So once I click here, it will take us on that particular slide. So this is how we can get. But sometimes this theme is not very useful because it is taking much space in the left margin. So we can change it. So to change it, if you see the same thing we were getting over there. These who, from, and when we can edit this one. So let us see more themes. Another theme is Bodila. So I'm just copying this one. So if I place over here and then execute, then compile it. So now see, the thing has been changed. So now here name is there and department is there. Of course, everything is not coming because that expressions are big expression. So we can keep them short just by abbreviating them. Suppose we want Ramanujan College complete. So DPT Mathematics Ramanujan College we can read, or simply we can write Ramanujan College only, and then making presentation. This is a big title. Title is big, so this is not showing full one. And this is page number here, page number and date. So every information is in the bottom of every slide. You can get every slide. So whose year is coming? Suppose we are giving the presentation and someone is coming late, so they can know who is the speaker, of course, from here, and then what is the presentation title and from which institute he belongs, and of course how many slides are left. Sometimes it is very boring, so uh, to sit in presentation. So how many slides left, or it is also easy to navigate. Suppose we are giving the presentation, so if someone has question on slide number 20 and we have 50 slides, so he cannot say go back. He just can say that you go to 20th slide and show me what you have written over there, and then you can go there and then uh, you can explain everything. Fine. So more better themes are available here. It's very good. Madrid. I like this one. More colorful and all. But after that, Arbor is there. So there are many. So let me copy and
copy full thing. So this is the thing, you just can change the theme. Okay, so let us put comment here, and then run. This square bracket kind of thing is optional, so we can keep or we can remove them. There is no problem about that one. So we see here. So now the title is coming in some box. There is a box and everything is centered, but bottom is a similar thing. Okay, so but here you see fact about table. Once I click over here, it will take me on that particular slide. So this is a hot we are getting now. Theorem environment, theorem. This is a title, a frame title is there, and then this is theorem environment. Whatever we are writing here, it will take in this box. It will write in this box only. So if the text is lengthy, then it will expand automatically. This box will expand automatically to cover up that. So, and this one is also better, and therefore we can and let me put comment over here. So there are several themes we can use. I will show one or two more, and then I will plunge it to in another aspect of this one. How do we beautify this presentation? So this is what we got. Yellow color in the title. There is a box, and then we have in the bottom also. So this is hot. This looks like good. So just see which style you want. This is also a good one, Cambridge US. Both are equally good because they don't use much space, waste much space. Let us compile. Nothing is wrong. This error shows just because of some connection error or something. Not technical error, kind of coding error. This is not coding error. So making you the presentation, you see this is something shadow kind of thing is coming. Shadow box is coming, and then we have everything. Page number is there, and then so theme is changing. Just we are changing the command. Theme is changing. So if you want like this, then you can put this one. And if you want like this square kind of thing is there, you want, then you can put this one. So earlier, no, nothing was a square kind of thing. Yes, this was like shadow kind of thing. ये corner इसका जो है rounded था, rounded corner, इसका भी rounded corner था. But if you want square, then we can use this one. And then there are many. And then presentation themes, file tree-like navigation bar. Tree-like navigation bar means you see here just like navigation bar is there. Earlier there was no navigation bar in the first page, in the front page, but or in the top यहाँ पे कोई भी नहीं था navigation bar ऊपर यहाँ पे कहीं पे, but navigation bar चाहिए आपको तो this is a better one. बट इसमें है कि ये खुद भी एक स्पेस तो लेता ही है, ठीक है ना. तो इसमें सेक्शन है, ये सेक्शन है, एंड देन इसके नीचे सब सेक्शन है. वी कैन सी दिस वन. ये सारे नेविगेशन बार वाले हैं कि इसमें देखिए, इसमें भी हम क्लिक करके इस पर अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना. यहाँ पे भी हम अप्रोच कर सकते हैं बार के लिए. सो नेविगेशन बार लेफ्ट पैनल में आएगा, बट यहाँ पे टॉप में भी ये स्पेस ले लेता है, लेफ्ट में भी स्पेस लेता है, तो प्रेजेंटेशन के लिए जो स्पेस है वो कम बचता है समटाइम्स. सो देयर आर मेनी. ये सारे आप देखेंगे तो ये सारे यहाँ पे राइट में है प्लॉट इंजन, अगर हम करेंगे तो ये वाला. एंड देन दिस इज समथिंग, दिस लाइट वन एंड दिस इज डार्क ब्लू. और यहाँ पे लेफ्ट में लाइट है
एंड देन वी हैव दिस आल्सो। यहाँ पे देखिए ये दिस इज बेटर बिकॉज बर्लिन, बर्लिन वन इज बेटर जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे जो है आपका पॉइंट आ जाता, पूरा लिख कर नहीं आता, तो इसलिए स्पेस कम ऊपर ऑक्यूपाई करता है। सो बर्लिन, लेट मी पुट बर्लिन विद नेविगेशन बार, वेयर इज बर्लिन, दिस वन। इसमें से कोई सा भी आप कॉपी कर सकते हैं, जस्ट आई एम डूइंग कॉपी और पेस्ट कीजिए एंड देन एंजॉय द लुक ऑफ दिस वन। So you see here this one. So here the question contains 3 slides. You see 3 dots are there. तो जिस स्लाइड पे भी आपको जाना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि, क्योंकि लास्ट जो सेक्शन बनाया था हमने, क्वेश्चंस बनाया था कि क्वेश्चंस अगर है कोई तो, और यहाँ पे जो है ये स्लाइड्स है, यहाँ पे 2 सेक्शंस है इनफैक्ट। इफ टॉक अबाउट देयर आर 2 सेक्शंस। पहला पे देखिए एक सेक्शन तो दिस इज ट्रबलिंग। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना इफेक्टिव विथ पे, तो यहाँ पे नेविगेट करेगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेक्शन उस सेक्शन पे ले जाएगा। फाइन, सो लाइक दिस। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ले जाएगा वहाँ पे। सो ये नेविगेशन, दिस इज बेटर, दिस वन इज बेटर। ओके, सो एवरीथिंग इज कमिंग स्क्वायर में भी आ रहा है। देखिए आप यहाँ पे नंबर देखें, इनुमरेट देखेंगे तो ऐसे आ रहा है, अपने आप ये कर ही रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट्स अपने आप आ रहा है। फिर यहाँ पे जो भी आप बुलेट्स आएगा, स्क्वायर और ब्लू कलर में बुलेट्स आएंगे, ठीक है, और ये थैंक्स टू ऑल ये साइन, तो इससे लुकिंग बेटर। अच्छा, अब इसमें होता है कई बार एनिमेशन आप देखते हैं कि आप चाहते हैं कि स्लाइड जो है घूम के आए, वर्टिकली आए, ठीक है ना, एनिमेट होकर के आए। पॉज होता है कि एक आप पॉज प्रेस करें बटन या एंटर प्रेस करें तो फिर पॉज हो करके आए, एक बार में एक लाइन आए लिख करके। तो उसके पहले देखिए ये भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, अगर हम देख पाएंगे तो ये वाला, दिस आल्सो ए गुड वन। यहाँ पे आप करेंगे तो इसमें 2 इंफॉर्मेशन, आपका नाम और ये प्रेजेंटेशन का बारे में बताया जाएगा। सर मेरे मोबाइल है क्या? एंड then we can use this slide, this command. Let us see what's coming. You see this one, and this one, यहाँ पे 2 सेक्शन, दो सेक्शंस हैं यहाँ पे बता रहे हैं, फैक्ट्स अबाउट 12 एंड क्वेश्चंस, एंड देन ये प्रेजेंटेशन का टाइटल है, और अब देखिए यहाँ पे पूरा नाम आ रहा है आपका और ये प्रेजेंटेशन आ रहा है, बट यहाँ पे पेज नंबर नहीं आ रहा है। तो पेज नंबर प्रोड्यूस कर सकते हैं, देयर आर कमांड्स with the help of which we can produce, and one can think about using 2 themes together. Suppose हम 2 themes करना चाहें तो 2 को हम ऐसे कर देते हैं यहाँ पे, and let us see what is the effect of this one. Is there something changing or what? Excuse me, sir. Yes, yes, please बोलो। तो यहाँ पे देखिए, हाँ हाँ प्लीज, जो भी सर कोड रन करा रहे हैं सबसे पहले परसेंट का साइन सर कमेंट लगाने के लिए हो रहा है, वो कमेंट लगाने के लिए परसेंटेज साइन लगा देंगे तो फिर वो आपका रन नहीं करेगा, वो लाइन जब कंपाइल करेंगे तो रीड नहीं करेगा, ठीक है। परसेंटेज जिसके पहले परसेंटेज लगाएंगे वो रन नहीं करेगा पूरी लाइन। ओके सर। अब देखिए दोनों मैंने कंबाइंड थीम लगाया, तो अभी तक इसके पहले जो मैंने लगाया था ना, तो उसमें नंबर पेज नंबर नहीं आ रहा था, लेकिन अब दोनों कंबाइंड लगा लिया तो उसका कुछ इफेक्ट इसमें आ गया, पेज नंबर आने लगा, ठीक है। सो समटाइम्स वी कैन यूज दिस वन आल्सो। अब यहाँ पे देखिए ये जो है, बट इसका कुछ वो भी होता है, नुकसान ये है कि
अब जैसे टेबल ऑफ कंटेंट में दूसरे का प्रभाव ये पड़ा कि इसमें ये एकदम लाइट आने लगा, दिख ही नहीं रहा है टेबल ऑफ कंटेंट। समटाइम्स इट इज यूजफुल। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी हम करके यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया, और इसमें से मैं ये जो है इस पे मैं कैम्ब्रिज यूएस रहने देता हूँ और एक हटा देता हूँ। और अब हम देखते हैं और हम इसके साथ क्या कर सकते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए। तो ये सारे डिफरेंट है, मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप कर सकते हैं। ये इनर थीम एंड ऑल ये सारी चीजें। इनर थीम का मतलब ये एक ओवरऑल थीम हो गई। अब देन इनर थीम की बात करेंगे तो इसमें जो आप टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हो इसके बारे में कहेंगे, ठीक है ना, कि कैसा वो दिखे कैसा ना दिखे। यूज इनर थीम सर्कल्स, अगर ऐसे करना है तो यहाँ पे देखो सर्कल बन करके आ रहा है ना, यहाँ पे सर्कल टाइप का, किसी में स्क्वायर बन के आता है। ठीक है, रेक्टेंगल्स करके देखो, रेक्टेंगल से लिखा हुआ है तो रेक्टेंगल्स करके लिखेंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल बन के आएगा। फाइन। तो इसको सर ये कोड सर हम बीच में भी सर यूज कर सकते हैं? जी नहीं नहीं, बीच में नहीं, ये तो अपना यहीं पे यूज होगा, प्रीएम्बल में यूज होगा। ये कोड जो है आपका बीमर डॉक्यूमेंट क्लास बीमर से लेकर के और आप बेगिन डॉक्यूमेंट के बीच से यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है ना, ओके। इसके बीच में कहीं पे डॉक्यूमेंट के अगर नीचे लिखें सर नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट के नीचे वहां पे नहीं। ये जो डॉक्यूमेंट जो भी थीम होती है या पैकेज होता है ना, उसको हम प्रीएम्बल में ही लिखते हैं। इसके बीच में कमांड्स कुछ होती हैं, जैसे पॉज हो गया, एनिमेशन हो गया, वो अभी बताऊंगा मैं आपको, वो वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी इसमें देखो बेटा, तो ये व्हाट इज देयर, दिस कम्स राउंड शेप में आ रहा है। अब ये समझिए मैं आपको ये सारी चीजें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वैसे तो प्रेजेंटेशन बनाना बता दिया आपको। ठीक है ना, ये देखो राउंड शेप में सर्कल जैसा आ रहा है। ठीक है ना, सो सर्कल है, तो अगर हम चाह रहे हैं स्क्वायर तो ये कर लो आप, रेक्टेंगल। ठीक है ना, स्क्वायर कर लो आप, अगर चाहिए राउंडेड कर लो तो ऐसा कर, अभी तक राउंडेड करके आ रहा है, ऐसे करके कुछ समथिंग। ठीक है ना, इमार्जिनल बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा करना चाह रहे तो ऐसा आएगा। फिर आउटर थीम की बात करेंगे तो आउटर थीम में जो है ये लेआउट की बात करेगा। ठीक है ना, ये आपका द हेड एंड फुट लाइन जो हो गया, साइड बार हो गया, लोगो हो गया, फ्रेम टाइटल हो गया। तो इसमें मतलब ये क्या करेगा, जो इनर थीम होता है इसके अंदर जो टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं उसकी नंबरिंग वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। आउटर थीम के बारे में ये बताएगा कि आपको इसको सेंटर में रखना है, इसको लेफ्ट में रखना है। ठीक है, और जो फ्रेम बना हुआ है ये कैसा रहे, इसका कलर, ये सारी चीज़ें। फिर कलर से उसको हम देखेंगे। मिनी फ्रेम्स एक होता है, तो इसमें फ्रेम के अंदर भी एक फ्रेम बना सकते हैं हम। तो इस ये हो गया। ठीक है ना, अब देखो ये साइड बार वाला है, यू साइड बार करेंगे तो इसके थीम हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, लेट मी कीप दिस वन। अब ये देखिए, आप इसको कंपाइल करेंगे तो ये जो आपका राउंडेड आ रहा है ये सर ये स्क्वायर हो जाएगा, रेक्टेंगल टाइप का हो जाएगा। इसी फाइन। सो ये रेक्टेंगल टाइप का हो गया आपका। ठीक है, उसके साथ कंबाइन करके फाइन। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस वन। और अब एनिमेशन के बारे में आते हैं, हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। इसमें एक तो होता है कि लाइन बाय लाइन, जो यहाँ से हमने देखा था ये वाला अभी हम देखते हैं। ठीक है ना, पॉज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल एनिमेशन। ठीक ना, मल्टीपल। अब एक तो होता है पॉज। ठीक है ना, पॉज बटन के लिए हमें, जैसे हम प्रेजेंटेशन जब दे रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि एक बार क्लिक करें तो वो आए। अब जैसे ये आइटमाइज है, ठीक है ना, और ये आइटमाइज यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि इसके बाद एक पॉज आए, तो हम यहाँ पे लिखे पॉज। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत सारे ये है। ठीक है ना, पॉज। अब इसमें कुछ वैल्यूज भी आप रख सकते हैं, अदरवाइज हम सिंपली पॉज यूज करेंगे। पॉज कमांड यूज करें, पॉज कमांड यूज करने पे आप जितनी जगह चाहें यूज कर सकते हैं। एक करेंगे तो एक पे आएगा, पॉज यहाँ पे भी कर दिया। ठीक है ना, फिर बैकस्लैश PAUS पॉज कर दिया यहाँ पे भी। ठीक है, सो ऐसे हम करके कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम पॉज लगाना चाहें तो बैकस्लैश पॉज लगा सकते हैं। और मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, हर जगह हमें पॉज की जरूरत है। हम एक बार जब क्लिक करें, एक बार जब एंटर करेंगे तो फिर ये एक ही दिखाएगा। ठीक है ना,
और यहाँ पे भी चाहिए हमें तो यहाँ भी पॉज लगा सकते हैं, ठीक है ना। और थैंक यू के बाद यहाँ भी करें तो हम यहाँ भी पॉज लगा सकते हैं। तो इसका अभी इस पे कोई फर्क नहीं दिखेगा जो हम यहाँ पे देखेंगे। अब इसको मैं डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। अच्छा, इसमें जैसे आपने कैम्ब्रिज यूएस लिया हुआ है, रेक्टेंगल लिया हुआ है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा। हमें भी कौन सा कर दें, बर्लिन कर दें, स्किप बर्लिन, ओके। सो ठीक है, ये है हमारा, ठीक है। अच्छा, इसको अब हम करते हैं, एक काम करता हूँ मैं डाउनलोड कर लेता हूँ पीडीएफ को, ठीक है। और पीडीएफ को डाउनलोड करके फिर आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है ना, पॉज का वो कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे यहाँ पे ये आपको बस इतना दिखेगा कि एक एक देखो, एक स्लाइड में एक आ गया, दूसरे स्लाइड में फिर एक प्लस एक्स्ट्रा हो गया, प्लस तीसरा हो गया, लेकिन वो एनिमेशन काइंड ऑफ थिंग वो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे कैसे आ रहा है। तो इसको हमें ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको लेट मी ओपन। आई डोंट नो, माइक्रोसॉफ्ट एडोब शायद मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, क्या है। तो इसमें लेट अस सी, देखिए ये जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, एक एक लाइन आ रही है ना, फाइन। ये चीज वहां पे नहीं दिख रही होगी जो आप हम करते थे, ठीक है। सर रिपीट करना सर अगेन सर। ये आप देखिए जैसे हम कर रहे हैं ना, तो एक पॉइंट आया, अब इस पे मैं बोलूंगा 12 है 6 पॉजिटिव डिवाइजर्स, एक पॉइंट आ गया, अब इसे बोलते जाओ आप थोड़ी देर। फिर दूसरे पॉइंट पे हम ऐसे कर सकते हैं, आप एंटर करोगे ना, या एंटर करिए, या फिर आप जो है एरो की होती है लैपटॉप में उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक बार क्लिक करेंगे इसको तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। अब बीच में भी लगा सकते हैं, अभी इसमें देखिए एक आया, दो आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, ठीक ना। तो पॉज ये ऐसे होता है, पॉज का यूज, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं इसमें कि और इसके साथ, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। कई बार हम ओपन करते हैं तो बहुत ही अच्छा एनिमेशन आता है ना। अब जैसे आप उसमें देखते होंगे कि प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो उसमें किसी का आता है, किसी को घूम जैसे आ रहा है कि इमेज या कोई स्लाइड आ रही है, घूम के आ रही है, कहीं सीधे आ रही है, कहीं डिसॉल्व करके आ रही है ना, कहीं जैसा होता है पर्दे जैसा खुल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत हैं जो हम यूज कर सकते हैं। लेट अस सी, स्लाइड ट्रांजिशन में आता है, ठीक है ना। स्लाइड ट्रांजिशन में जो है, अब जैसे ये है यहाँ पे ट्रांस ब्लाइंड हॉरिजॉन्टल, तो इसमें हॉरिजॉन्टल आएगा, तो एक एक करके मैं एक एक स्लाइड में कर दे रहा हूँ ये, ठीक है ना। ये आप केवल इतना ही हमें लिखना है, ये सारे ऑप्शनल हैं, स्पेसिफिकेशन हमें देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाद में जब आप लोग अपने से करेंगे तो खूब सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। सो एक काम करते हैं हम पहले, ये दूसरे फ्रेम पे मैं देता हूँ, ठीक है ना, बिगिन फ्रेम, एंड फ्रेम और अब्स्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे मैं एक दे रहा हूँ, ट्रांस ब्लाइंड हॉरिजॉन्टल कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है ट्रांस डिसॉल्व में कर दे रहा हूँ पहले पेज पे, दिस ये अच्छा लुक देता है। पहले पेज पे टाइटल के जस्ट पहले हम लिख देंगे, ठीक है ना। ये देखो अंदर हम लिख रहे हैं, बिगिन डॉक्यूमेंट के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है ना। पैकेजेस जो होंगे हम वहीं पे लिखेंगे, लेकिन ये जो है, जो एनिमेशन काइंड ऑफ थिंग, ये हॉरिजॉन्टल लिखा था हमने, ये वर्टिकल इन कर देते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हम किस में क्या रखना चाह रहे हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट में हमने रखा है कुछ, हाँ टेबल ऑफ कंटेंट में रखा है, इस वाले में यहाँ पे नहीं रखा था हमने, बिगिन फ्रेम में, इसमें भी कर देते हैं, ठीक है ना, ओके। ट्रांस बॉक्स वर्टिकल आउट, बहुत सारे हैं यहाँ पे जिसका हम यूज़ करेंगे। चलो इस सेक्शन पे हम बॉक्स आउट करते हैं एक पर्टिकुलर स्लाइड के लिए, ठीक है ना। और ट्रांस वाइप ये कर देते हैं,
इसमें हर एक फ्रेम में हम एक एक अलग अलग भी दे सकते हैं, सिंगल भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जितना हम चाहे। अब यहाँ पे ये ट्रांसवर्क ड्यूरेशन, इसमें टाइम हम कर सकते हैं कितने देर में आए या, और देखिए ये ग्लिटर, ट्रांस ग्लिटर कर देते हैं, ग्लिटरिंग होगी इससे। सो लेट अस सी इफ यू हैव सम मोर। ओके, तो पॉज यहाँ पे तो लगाया ही हमने, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम ग्लिटर कर देते हैं। पॉज जो है पॉइंट्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के लिए आप एक बार में एक दिखाना चाह रहे हो तो वो आप कर सकते हैं उसमें। और हम देखते हैं ये वाला कर दें, ट्रांसबॉक्ट हॉरिजॉन्टल इन इफ देयर इज समथिंग। ओके, या फिर इसमें भी हम ग्लिटर कर देते हैं, ये वाला रिजॉल्व कर देते हैं, ट्रांसफर जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे हम लोग फिनिश कर रहे हैं उसी पे। सो ये हो गया पॉज, तो ये यहाँ पे हमने कर दिया। अब हम रन कर आते हैं और फिर हम वहाँ पे डाउनलोड करके देखेंगे। इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। सो लेट अस सी। फाइन, यहाँ पे ऐसे हमें अभी दिखेगा नहीं है, यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि उस तरीके से कुछ तो हमें नहीं दिखेगा। हाँ ये है कि पॉज वाला दिख जाता है बस केवल। सो लेट मी डाउनलोड अगेन। It has been downloaded. Okay, I have opened this file. So let us enlarge this one in full screen. You see how the animation is coming, glittering, and then there is another animation, then another animation, then this animation, then this is a pause. When we use the pause command, so what we are getting, you can see, very much see. Just I am pressing the enter button or arrow key, right arrow key. So I am getting one by one statement or one point at one time. So this is the next page. Then pause was there, then again pause, and then pause, pause. So again some animation is there, and then we can see the how theorem is appearing. Then again glittering kind of thing, you see. So this is a how, again if I go to home page, you can see. So this is a how we can beautify our presentation in LaTeX using the Beamer class. Fine.